Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today we will discuss first year at Harrow. This is the first essay of Modern Heroes. Let's start. Dear students, first year at Harrow was written by Sir Winston Leonard Spencer Churchill, who is famous as Sir Winston Churchill. Sir Winston Churchill was a British statesman, army officer, and writer. He also remained Prime Minister of England twice, from 1940 to 1945, and again from 1951 to 1955. He wrote a number of books including MA History of the English-speaking peoples in 4 volumes. He also won the Nobel Prize for Literature in 1953. Dear students, first year at Harrow has the following main points. Number 1, Churchill's own disliking for the examinations. Churchill was not a brilliant student in the beginning. That's why he did not like examinations. There are certain students, a lot of students in the world who do not like examinations. Number 2, the writer wanted to be examined in history, poetry, and writing essays, but the examiners had other views. Number 3, his complete failure in Latin paper in the entrance test for Harrow. This is going to be a very interesting part of the essay. Number 4, Churchill was taught only English. He was taught only English because he was not a brilliant student. And how Mr. Somervell was English teacher who taught Sir Winston Churchill and his other friends. Mr. Somervell taught him and other dull boys. Number 5, his knowledge of English proved very fruitful in his practical life. Now discuss the essay first year at Harrow. Dear students, in the first part of the paragraph, we will discuss 2 questions. Number 1, why did Churchill call examinations in hospitable regions are a great trial? A very important question, I must say. Question number 2, what subjects did the writer want to be examined? I scarcely passed my 12th birthday, scarcely hardly, अभी बमुश्किल मेरी 12 साल उम्र हुई थी, when I entered the inhospitable regions, inhospitable, cruel, unkind, unfriendly, जालमाना इलाकों में दाखिल हो गया, किसके? of examinations, though through which for the next 7 years I was destined to journey, destined, fated, doomed, जिसमें मुझे अगले 7 साल उसमें सफ़र करना था, मेरी किस्मत में, मेरे मुकद्दर में यह लिख दिया गया. दीज एग्जामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी. ट्रायल, ऑर्डियल, टेस्ट, ये इम्तहानात मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थे. जब इम्तहान में कुछ आता ना हो तो फिर इम्तहान, आजमाइश और सख्त मुश्किल लगते हैं. द सब्जेक्ट्स, यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा. द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स were almost invariably those, invariably, always, constantly, हमेशा वो होते थे I fancied least, जिसके बारे में मैं बहुत कम सोचता था, जिनको मैं बहुत कम पसंद करता था. I would have liked to have been examined in history, पोइट्री एंड राइटिंग एसेस. सर विंस्टन चर्चिल चाहते थे कि उनका हिस्ट्री में, पोइट्री में और राइटिंग एसेज में इम्तिहान लिया जाए. इसमें इनको इंटरेस्ट था, इसमें ये कंफर्टेबल फील करते थे. Dear students, in this part of the paragraph, we'll discuss one question that may be asked in 2 ways. Very important question. In which subjects were the examiners interested? Or why did the writer not do well in examinations? ये जनरल क्वेश्चन है, लैटिन पेपर का आगे आएगा, इसलिए इन दोनों को आपने अलग अलग समझना है. Why did the writer not do well in the examinations? A very important question, I must say. The examiners on the other hand were partial to, biased.
वन साइडेड, जानबदार थे टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स। लैटिन लातीनी ज़ुबान और मैथमेटिक्स में सर विंस्टन चर्चिल बहुत अच्छे नहीं थे, तो इनको इसलिए लगता था कि शायद इनके असातिज़ा जो हैं वो जानबदार हैं और उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड देयर विल प्रिवेल्ड, यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये नाउन है। विल विश, ख्वाहिश, प्रिवेल्ड गालब रहती थी, यानी टीचर्स की विश गालब रहती थी। इम्तहान में वही क्वेश्चंस आते थे जो वो चाहते थे। मोर ओवर द क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दी सब्जेक्ट्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, हमेशा वो होते थे टू विच आई वॉज अनेबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, जिनका मैं कभी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता था। क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनमें ये कंफर्टेबल भी नहीं थे। I should have liked to be asked to say what I knew. Most of the students यही चाहते हैं कि उनसे वो पूछा जाए जो उनको आता है, इम्तिहान में वो ना पूछा जाए जो उनको नहीं आता। They always tried to ask what I did not know. हर बच्चा यही समझता है कि क्लास में सर वही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जो मुझे नहीं आता। When I would have willingly displayed my knowledge, willingly, happily, displayed, showed, exhibited, जब मैं खुशी से अपना नॉलेज शो कर सकता था आसान सब्जेक्ट्स में, they sought to expose my ignorance. Expose, reveal. Ignorance, इलिटरेसी, अनअवेयरनेस, जो मेरी कम इल्मी होती थी वो ऐसे लगता था जैसे उसे एक्सपोज करने के दरपे हैं। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, बिहेवियर, कंडक्ट। उसका एक ही नतीजा होता था, क्या? आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, कि जिसकी वजह से मैं इम्तिहानों में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता था। अब आपको समझ आ गई होगी कि वाई डिड द राइटर नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशंस। In this part of the paragraph, a small paragraph, how did Mr. Weldon examine the writer's Latin paper? यहाँ इसको यूँ भी पूछा जा सकता है, who was Mr. Weldon? Mr. Weldon was actually the headmaster of Harrow. This was especially true of my entrance examination to Harrow. हर अच्छे इदारे में एक एंट्री टेस्ट होता है, जिस तरह अब आपका भी एफएससी के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्री का टेस्ट होता है। तो हैरो जो है ये एक वर्ल्ड फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ भी एंट्री टेस्ट होता है। द हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन however took a broad-minded view of my Latin prose. Broad-minded, open-minded, generous. बड़ा उन्होंने खुले दिल का मुजाहरा किया मेरे लैटिन प्रोज के पेपर में। He showed discernment. Discernment means wisdom, intelligence. उन्होंने जहानत का मुजाहरा किया in judging my general ability. चूँकि उन्होंने पेपर में कुछ नहीं लिखा था, लैटिन प्रोज के पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। Judging means assessing, evaluating. You know these are different colors. This color is for MDCAT vocabulary. वहाँ judgment है basically, तो और evaluate है। ये एक दूसरे के synonymous भी हैं और इनकी जो complete जो synonym और antonym है मैंने नीचे description link में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपसे भी यही चाहूँगा, try to get as many synonyms and antonyms of these words as possible. तो वो उन्होंने इनकी जनरल एबिलिटी को जांचा, पेपर पे नहीं गए। दिस वॉज द मोर रिमार्केबल एक्स्ट्रॉर्डनरी, बड़ी गैर मामूली बात थी, बिकॉज आई वॉज फाउंड अनेबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर, कि लैटिन पेपर में एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मिस्टर वेल्डन ने वेल्डन किया, नाम की तरह इनको दाखला दे दिया। वो समझते थे कि ये बच्चा अच्छा है, और अल्टीमेटली सर विंस्टन चर्चिल ने भी प्रूव किया, जो बाद में एक बहुत दुनिया के पॉपुलर जो प्राइम मिनिस्टर साबित भी हुए। Dear students, in this part of the paragraph, we'll discuss one question. How did the writer do his Latin paper? I must tell you, this is one of the most important questions in first year at Harrow and from the examination point of view as well. So learn it very carefully. It might be a bit lengthy, but very important. I wrote my name at top of the page. जब पेपर मिला तो टॉप पे कहते हैं मैंने अपना नाम लिखा। I wrote down the number of question
1 इस तरह से क्वेश्चन 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स थिंकिंग, बहुत सोचो विचार के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट 10, उस 1 के इर्द गिर्द ऐसे ब्रैकेट लगा दी। और उसके बाद बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद इट, कनेक्टेड रिलेटेड जो उससे मुतल्लका हो, दैट वॉज आइदर रेलिवेंट आर ट्रू, रेलिवेंट मीन्स कंसर्निंग, कनेक्टेड आर रेलिवेंट में बी सिनोनिमस टू ईच अदर। यहाँ एक और भी कंस्ट्रक्शन है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, आइदर के साथ हमेशा आर यूज होता है, आप आइदर के साथ नार यूज नहीं कर सकते, नाइदर नॉर और आइदर आर। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली मीन्स बाई चांस, इत्तेफाक से, देयर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स स्पॉट, मार्क, कुछ धब्बा सा आके पेपर पे गिरा, एंड सेवरल स्मजेस, स्मजेस मीन्स स्टेन्स, डर्टी मार्क्स, पहले को एक धब्बा गिरा फिर काफ़ी सारे धब्बे आके पेपर पे गिर गए। एंड आई गेज्ड फॉर द होल 2 whole hours at this sad spectacle, spectacle मतलब साइट सीन, यानी पेपर पे उन्होंने अपना नाम लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखा और उसके बाद उसके इर्द गिर्द ऐसे ब्रैकेट लगा दी और फिर कुछ धब्बे आके गिर गए और फिर 2 घंटे वो इसी मंजर को देखते रहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसे वाक़या पेश हुआ हो कि जब पेपर ना आता हो और आपको बैठना पड़े पेपर में, ये इंतहाई मुश्किल काम है। एंड देन मर्सीफुल उशर्स, मर्सीफुल काइंड उशर्स अटेंडेंट्स, वो जो पेपर कलेक्ट करते हैं एंड पे, कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल्स कैप, फूल्स कैप कहते हैं पेपर को, वो जो आप पेपर देते हैं, विद ऑल दी अदर्स एंड कैरीड इट अप टू द हेडमास्टर्स टेबल। इट वॉज फ्रॉम दी स्लैंडर इंडिकेशंस, स्लाइट इंडिकेशंस साइंस, ये मामूली इशारे थे ऑफ स्कॉलरशिप, दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, रिजल्ट उन्होंने ये नतीजा निकाला, मिस्टर वेल्डन ने, आई वॉज वर्दी टू पास इन टू हैरो, कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया लेकिन वो मेरी जनरल एबिलिटी को देखते हुए उन्होंने दाखला दे दिया, और ये बड़ी गैर मामूली बात थी। इन दिस पार्ट ऑफ द पैराग्राफ we'll discuss 2 questions. Number 1, why does the writer say that he had great regard for Mr. Weldon? Obviously great regard होना भी चाहिए, उनको दाखला जो दे दिया था। Question number 2, how were the names of boys printed in the school list and where was the writer placed? It was very much to his credit. His मतलब Mr. Weldon, to his credit, his honor. It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things, beneath, under, below, कि वो इतनी काबिल आदमी थे जो चीज़ों की को सतह से नीचे जाके जज कर सकते थे, वो सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों पे नहीं जाते थे, वो इंसान को अंदर तक जांच लेते थे देखने के बाद। अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टेशंस शो डेमोन्स्ट्रेशंस, यानी वो जो पेपर था सिर्फ उसको देख के वो किसी इंसान की, किसी स्टूडेंट की काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगाते थे, वो इंसान को भी जज कर लेते थे। आई हैव ऑलवेज ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, रिगार्ड मीन्स रेस्पेक्ट, कि वो हमेशा उनके लिए बहुत रिगार्ड रखते थे। और वाक़तन ये जो उन्होंने जज किया मिस्टर वेल्डन ने सर विंस्टन चर्चिल को, वो ठीक जज किया था, और सर विंस्टन चर्चिल ने भी बाद में ये साबित किया कि मिस्टर वेल्डन का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ये दुनिया के जो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनमें सर विंस्टन चर्चिल का भी नाम आता है। ही वॉज अ वंडरफुल ओरेटर एंड स्पीकर। वो स्पीकर और इंग्लिश ओरेटर कैसे बने ये भी हम आगे जाके पढ़ते हैं। इन consequence of his decision, consequence means result of his decision, I was in due course at last eventually placed in the 3rd or lowest division of the 4th or bottom, यानी मुझे 3rd ग्रेड में या जो लोएस्ट डिवीजन ऑफ 4th होता है, जो 3rd क्लास के ही बराबर होता है, या बॉटम में दाखला दे दिया उन्होंने। द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज़ वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो जितने भी नए बच्चे जिनको दाखला मिला था उनको हरूफ तहज्जी के मुताबिक उनके नामों के साथ एक लिस्ट बनाई गई। एंड एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल बिगैन विद एन एस,
चूंकि मेरा नाम एस के साथ शुरू होता था, यहां आप कहेंगे ये एस से पहले एन क्यों आया है। अगर आप एस को प्रोनाउंस करें तो अलिफ की साउंड पहले आती है, या अगर आप किसी वर्ड को उर्दू में लिखें तो अलिफ आए, एस जब उर्दू में लिखेंगे तो पहले अलिफ ये और सीन लिखेंगे, इसलिए यहां एन आया है। तो एन हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ नहीं, हम वॉवल साउंड से पहले एन लिखते हैं। आई गेंड नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फ़ाबेट देन फ्रॉम द वाइडर स्फेयर ऑफ लेटर्स। स्फेयर मीन्स रेंज, एरिया के 26 लेटर्स हैं, इतना उनका वसी फैला हुआ है 26 लेटर्स पे इंग्लिश लेटर्स। मुझे उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इनका नाम एस से शुरू होता था और ये एंड पे ही थे। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल। जब पूरे स्कूल की लिस्ट बनाई गई तो सिर्फ इनके नीचे 2 बच्चे थे, मतलब ये एंड पे ही थे। एंड दीज 2 आई रिग्रेट टू से, रिग्रेट मीन्स रिमोर्स, फील सॉरी, टू से डिसअपेयर्ड। वो कहता मुझे अफसोस है कि वो भी चले गए। एंड ऑलमोस्ट इमीजिएटली एट वंस थ्रू इलनेस आर सम अदर कॉज। और वो बच्चे भी किसी बीमारी या किसी दूसरी वजह से स्कूल छोड़ के चले गए और पूरे स्कूल में फिर इनका नाम एंड पे था। यहाँ रिग्रेट एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट कलर में मैंने यूज़ किया है। इट मीन्स ये भी एमडी कैट वोकैबुलरी में शामिल है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स दिए हुए हैं। Dear students, in this part of the paragraph, we'll discuss 2 questions. Number 1, why was the writer taught only English? Number 2, how did Mr. Somervell teach English, who was an English teacher? I continued in this unpretentious situation, unassuming, humble, मुश्किल भी कह सकते हैं, इस मुश्किल सूरत हाल में for nearly a year, उस सूरत हाल में तकरीबन 1 साल रहे। However, by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the cleverer boys. Immense means huge, great, big. के इनको छोटी क्लास में रखा गया तो इनको क्लेवरर मीन्स ब्रिलियंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से एक फ़ायदा हो गया, उनकी निस्बत इनको एक एडवांटेज ये हो गया। दे ऑल went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. Splendid, great, excellent things like that. वो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते थे उनको ऑप्शन होता था कि उस दौर में वो दूसरी ज़ुबानें भी सीखें, तो इनको दूसरी ज़ुबानें सीखने का मौका नहीं मिला, जिस तरह लैटिन और ग्रीक हो गई। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, इनको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई गई। वी वर कंसिडर्ड सच डंसीज, कंसिडर्ड, रिगार्डेड एज, हमें तसव्वुर किया जाता था डंसीज, बेवकूफ़, दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश। और हमें यहाँ वी से मुराद है यानी सर विंस्टन चर्चिल और इन जैसे और भी कई स्टूडेंट्स थे, उनका एक ग्रुप बना दिया गया और उनके बारे में यह तसव्वुर किया जाता था कि इनको सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा दें, यही काफ़ी है। मिस्टर समरवेल आ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, डिलाइटफुल मीन्स चीयरफुल। मिस्टर समरवेल उनके इंग्लिश टीचर थे जो इंतहाई खुश कुन आदमी थे, बड़े जॉली थे। टू whom my debt is great, जिनका मैं बहुत ही मरहून मिन्नत हूँ। वॉज चार्ज, मिस्टर समरवेल को चार्ज किया गया, उनको ड्यूटी लगाई गई, जिम्मेदारी उनको दी गई। किस बात की? चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज़, स्टूपिडेस्ट सेंसलेस, ये उन अनइंटेलिजेंट बॉयज़ के लिए है जिसमें सर विंस्टन एस चर्चिल और इन जैसे और कई स्टूडेंट्स शामिल थे। द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, डिसरिगार्डेड मतलब अनवर्दी, इग्नोर्ड, ये कोई काबिल इज़्ज़त बात नहीं समझी जाती थी। नेमली क्या था वो? टू राइट मेयर इंग्लिश, मेयर मतलब ओनली, कि हम सिर्फ इंग्लिश ही लिख सकते हैं और हमें सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जानी चाहिए। He knew how to do it. How did Mr. Somervell teach English? तो ये भी हम ये सेंटेंस भी उसमें ऐड करेंगे और यहाँ ये भी, यहाँ एंड तक। He knew how to do it. वो जानते थे कि कैसे करना है। He had experienced teacher. He was experienced teacher. He knew how to teach such boys. He taught it as no one else has ever taught it. Not only did we learn English passing thoroughly, passing means analyzing thoroughly, completely, यानी इंग्लिश स्ट्रक्चर को वो बहुत अच्छी तरह समझ गए, but we also practiced
कंटिन्यूअली इंग्लिश एनालिसिस, और हमने भी मुसलसल जो इंग्लिश एनालिसिस था, जो कंस्ट्रक्शन था, इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से समझ गए, जिनका इनको बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में जाके बहुत फ़ायदा हुआ। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन। मिस्टर समरवेल का पढ़ाने का एक अपना तरीका था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक और इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बताता चलूँ। वैसे पहले भी बताई हुई है कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली यूज़ हो तो इसके साथ हमेशा हम बट और ऑल्सो यूज़ करते हैं। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो, ये आपके एंट्री टेस्ट में काम आएगी ये कंस्ट्रक्शन, और ग्रामर में भी करेक्शन के हवाले से आपकी मददगार होगी। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो या बट एज वेल भी यूज़ किया जा सकता है। Dear students, in this part of the paragraph, we'll discuss two questions. How did Mr. Somervell break the long sentences to teach the boys? Very important question कि आखिर उनका तरीका क्या था कि बच्चों को इंग्लिश की समझ आ जाती थी। Number 2, what good did his 3 years stay at Harrow do him? वो 3 years रहे एक ही क्लास में, उनका क्या फ़ायदा हुआ उनको? R, इस क्वेश्चन को दो तरीकों से पूछा जा सकता है। What did the writer get into his bones and how? What did the writer get into his bones and how? आखिर उनकी हड्डियों में कौन सी ऐसी चीज़ रच बस गई, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिनको वो पूरी तरह समझ गए। तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड मिस्टर समरवेल ब्रेक द लॉन्ग सेंटेंसेस टू टीच द बॉयज़? ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस एंड ब्रोक इट अप इनटू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स। वो एक लेंथी सेंटेंस लेते, उसको पार्ट्स में तब्दील कर देते। कैसे लिख देते? बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक्स। यानी एक लंबे सेंटेंस को वो डिफरेंट कलर्स में लिखते, और उन का मतलब क्या होता था कि डिफरेंट कलर्स डिफरेंट ग्रामेटिकल पार्ट्स को शो करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉजेज, कंडीशनल क्लॉजेज, कंजक्टिव एंड डिसजंक्टिव क्लॉजेज। तो इस तरह से बच्चों को भी समझ आ जाती थी कि ये कलर किसका है। जिस तरह मैं बता देता हूँ कि एमडी कैट का ये मखसूस कलर है, आपको देखते ही समझ आ जाती होगी कि ये जो कलर है हमने इस पे ख़ास तवज्जो देनी है। तो उनका भी यही तरीका था। ईच हैड इट्स ओन कलर एंड इट्स ब्रैकेट। इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल। ड्रिल मीन्स एक्सरसाइज एंड वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली। तो वो कहते हैं इस तरह से वो डेली ये प्रैक्टिस करते थे, तो इसका उनको बहुत फ़ायदा हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो स्ट्रक्चर होता है किसी लैंग्वेज का, तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर था उनको समझ आ गई, ग्रामर की बहुत अच्छी समझ आ गई, अच्छी तरह से इंग्लिश लिखनी आ गई। अब सेकेंड क्वेश्चन, what good did his 3 years stay at Harrow do him? Or what did the writer get into his bones and how? We did it almost daily, as I remained in the third 3 times as long as anyone else. ये 3 times एक ही क्लास में रहे। I had 3 times as much of it. तो 3 times ही उन्होंने इस लैंग्वेज स्ट्रक्चर को सीखा। I learned it thoroughly. Thoroughly means completely. तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई। Thus I got into my bones the essential structure. Essential, necessary, basic. Structure means कंस्ट्रक्शन। वो जो बेसिक इंग्लिश होती है वो उनको समझ आ गई बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी इंग्लिश लिखना शुरू हो गए। जाहिर है इंग्लिश की समझ आ जाए तो अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं और फिर बोल भी सकते हैं। Thus I got into my bones, इडियम है, मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। The essential structure of ordinary British sentence which is a noble thing. और डेफिनेटली ये चीज़ें उनको बाद में जाके बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। Dear students, in this part of the paragraph, we'll discuss one question. In after years, how did the knowledge of English stand him in good stead? वो जो 3 साल मुसलसल एक ही क्लास में रहने से इनको अच्छी तरह से इंग्लिश की समझ आ गई, इनको बाद में उनका क्या फ़ायदा हुआ? एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स, यानी जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, स्कूल से आगे अपनी दुनिया में चले गए, पर्सनल लाइफ में चले गए, प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, माई स्कूल फेलोज हु हैड वन प्राइजेज एंड डिस्टिंक्शंस फॉर राइटिंग सच ब्यूटिफुल लैटिन पोइट्री एंड पिथी Greek epigrams.
डिस्टिंक्शन, वो स्टूडेंट जिन्होंने प्राइजेस विन किए थे, डिस्टिंक्शंस के और डिस्टिंक्शंस हासिल की थी, ऑनर और एक्सीलेंस हासिल की थी फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री एंड पिथी. पिथी मीन्स कंपैक्ट, ब्रीफ, कॉम्प्रिहेंसिव बट ब्रीफ. Greek epigrams, sayings, maxims, makule, muhavre had to come down again to common English to earn their living आर मेक देयर वे. उन्होंने स्कूल में तो बड़े प्राइजेस हासिल किए ये ग्रीक के बहुत अच्छे अच्छे फ़िक्रे लिखकर, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, आम बंदे से बात करने के लिए तो ग्रीक की ज़रूरत नहीं थी ना उन्हें. आम बंदे से बात करने के लिए तो उनकी दुनिया में उनको अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत थी. तो उनको फिर सीखना पड़ा है इनको आके. आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज. तब इन्होंने महसूस किया कि वो जो स्कूल में मुझे उन्होंने इंग्लिश सिखाई थी उसका फ़ायदा मुझे अब हुआ, तो मेरे लिए ये कोई डिसएडवांटेज नहीं था. नेचुरली आई एम बायस्ड. बायस्ड मीन्स पार्शल, वन साइडेड. वो कहते हैं कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर मैं बायस्ड हूँ, जानबदार हूँ इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश, कि वो लड़के जो इंग्लिश सीखते हैं मैं उनके हक में हूँ, मैं उनकी फेवर में हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने इंग्लिश कॉम में ही रहना है, उनके साथ इंग्लिश ही बोलनी है. अगर उनको अच्छी इंग्लिश आती होगी तो वो इम्प्रेसिव और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं. आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश. वो कहते हैं मैं चाहूँगा कि ये इंग्लिश ही सीखें. एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस, यानी वो जो ब्रिलियंट किस्म के स्टूडेंट होते हैं उनको मैं चाहूँगा कि लर्न लैटिन एज एन ऑनर एंड ग्रीक एज अ ट्रीट, कि वो लैटिन और ग्रीक ऑनर और ट्रीट के तौर पर सीखें. लेकिन बाद में उनको क्या होगा, उनको इंग्लिश तो आएगी नहीं. बट द ओनली थिंग आई वुड विप देम. विप मीन्स बीट, पनिश, थ्रैश, कि वो एक चीज़ जिसकी वजह से मैं उनको चाबक मारूंगा, मैं उनको सज़ा दूंगा, इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, कि ज़ाहिर है वो लैटिन और ग्रीक ज़्यादा उनको आती होगी, इंग्लिश नहीं आती होगी, तो इंग्लिश ना आने पे फिर मैं उनको सज़ा दूंगा. आई वुड विप देम हार्ड फॉर दैट, और मैं उनको बड़ी सख्त सज़ा दूंगा, सख्ती से मारूंगा. दैट्स ऑल ऑफ टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स. If you have any problem, if you have any question, you may comment in the comment section below. I'll be there inshallah to answer all your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself. Thank you very much.